Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu Agarwal. In today's video, we'll be discussing about the section 185 of the Companies Act 2013. The reason why I have selected this particular section is because we have to read, learn, relearn and this particular section during our entire CS journey. Either you are in CS executive, CS professional or you are applying for the interviews. Yes, even at the time of interviews, you will face many questions from this particular section. Even after completing your CS, you will come across the practical compliances of this particular section. Either you will go for a job or for a practice. You have to work upon the compliances of this section. So I can say this is one of the important section in the entire Companies Act 2013. Section 185 is about loan to the directors, or I can say this particular section is all about in which cases a company can give loan to the directors and about the conditions which needs to be fulfilled when a company is providing loan to its directors and many other things. So I will try to discuss the every nitty-gritty point of this particular section. So starting with the same. So starting with the section 185 subsection 1, which clearly states that company cannot give loan, provide guarantee, security to. When it comes to two, I have divided this into 3 points. First one is to the directors of the company, and directors of the holding company. पूरे सेक्शन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती, गारंटी प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती. बट टू द डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी इट्स रिस्ट्रिक्टेड. Thereafter comes to the partners or the relatives of the director. उनको भी कंपनी क्या करती है, लोन सिक्योरिटी गारंटी ये सब नहीं प्रोवाइड कर सकती. देयर आफ्टर एनी फर्म, कोई भी ऐसी फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव क्या है, पार्टनर है. सो ये 3 पॉइंट्स, इसमें कंपनी लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती. सो दिस इज अबाउट सबसेक्शन 1. नाउ सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 स्पीक्स दैट company can give loan to any person in whom the directors of the company is interested. So this line that to any person in whom the directors of the company is interested includes what? So there are 3 points. 3 ऐसे persons है जो subsection 2 के अंदर count हो रहे हैं. I'll start one by one and I'll cover all the 3 points with the examples. So starting with the example, I'll cover all the 3 points in one example, but these are 3 different points and 3 different criteria. So example is suppose this is company A and this is company B. Company A is the lender and company B is the borrower. This is lender, this is borrower. अब first point is director of company A, मतलब director of lender company is either a director और मेंबर इन दी बोरोवर कंपनी. मतलब इस कंपनी में जो डायरेक्टर है वो इस कंपनी के अंदर, मतलब बोरोवर कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर बोरोवर को लोन दे सकती है. सेकेंड पॉइंट इज 25% वोटिंग पावर ऑफ द बोरोवर कंपनी इज एक्सरसाइज्ड बाय अ डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऑफ द लेंडर कंपनी. मतलब लेंडर कंपनी के जो डायरेक्टर है वो बोरोवर कंपनी के अंदर 25% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहे हैं. मतलब दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ मिनिमम 25% वोटिंग पावर इन द बोरोवर कंपनी. सो इस केस के अंदर भी अ कंपनी कैन गिव लोन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी. एंड थर्ड पॉइंट इज मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ बोरोवर कंपनी are accustomed to act as per the instructions of the lender company. लेंडर कंपनी के डायरेक्टर्स जैसा भी बोलते हैं वैसा बोरोवर कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं. सो इन दिस केस एज वेल कंपनी कैन गिव लोन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी. बट क्या ये लोन ऐसे ही दे सकते हैं? द आंसर इज नो. कितना भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस हो, कितना भी कंट्रोल हो या कितनी भी तुमने शेयर होल्डिंग लेके रखी हो, तुम ऐसे ही लोन नहीं दे सकते किसी दूसरे कॉर्पोरेट को एज पर सेक्शन 185. सो देर आर 2 कंडीशंस विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड. फर्स्ट वन इज लेंडर कंपनी नीड्स टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन. यस, कंपनी ए को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा एंड स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ए ने पास किया. नाउ कम्स टू कंपनी बी, दैट इज बोरोवर कंपनी. तो बोरोवर कंपनी नीड्स टू यूटिलाइज दैट मनी विच द कंपनी बोरोड फ्रॉम दिस कंपनी ए फॉर देयर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ओनली.
वो कोई और बिजनेस के लिए, कोई और बिजनेस पर्पज के लिए, लाइक डिविडेंड दे देते हैं, बोनस डिक्लेयर कर देते हैं, उसके लिए यूज नहीं कर सकती। जो उनका मेन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है विच दे आर रनिंग, उसी के लिए सिर्फ यूज कर सकती है। सो दीज टू कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड। Okay, so we are done with subsection 2 as well. Now comes to subsection 3, जहां पे subsection 1 and 2 applicable नहीं होता। This means subsection 3 speaks about the cases जहां पे 1 and 2 applicable नहीं होगा। मतलब you can give money to the directors of the company either via loan or via any other thing, but वो loan में count नहीं होगा, but उसके लिए आपको special resolution pass नहीं करना पड़ेगा। So इस पर्टिकुलर सबसेक्शन के अंदर 4 पॉइंट्स है जहां पे सबसेक्शन 1 and 2 अप्लाई नहीं होगा। स्टार्टिंग विद द पॉइंट 1। पॉइंट 1 इज वेयर द कंपनी इज प्रोवाइडिंग लोन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज पर द सर्विसेज एक्सटेंडेड बाय देम। मतलब उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड की या उसका कोई पार्ट था, कुछ भी था, बट उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वो डायरेक्टर्स ने क्या किया था, कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की थी। Second is company is providing loan to the directors of the company as per any scheme which is approved by members of the company via special resolution. Members ने approve किया है via special resolution है, कोई scheme है तो ये particular case के अंदर भी company directors को amount दे सकती है। Second point, company is providing loans, guarantee, security in their ordinary course of business. वो particular company का काम ही यही है, लोगों को पैसे देना, बोरो करना, गारंटीज प्रोवाइड करना, सिक्योरिटीज देना, तो ऑब्वियसली वो कंपनी करेगी। तो ये पर्टिकुलर केस के अंदर भी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर कंपनी जो लेंड कर रही है डायरेक्टर्स को अमाउंट, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट से कम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो पर्टिकुलर यील्ड रेट से कम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करो। क्या सपोज कंपनी क्या कर रही है, लोन दे रही है डायरेक्टर्स को विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, तो क्या ये एग्जाम्पशन के अंदर फॉल करेगा, ये सबसेक्शन 3 के अंदर फॉल करेगा? द आंसर इज नो। इफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर यील्ड रेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आप लेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो या फिर आप इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर रहे हो, सो इन दिस केस ये सबसेक्शन 3 के अंदर फॉल नहीं करेगा। दिस विल बी फॉल्ड अंडर सेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। पॉइंट 3 इज होल्डिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग लोन टू इट्स सब्सिडियरी कंपनी। व्हेन होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड्स लोन टू इट्स सब्सिडियरी कंपनी, तो इसमें भी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। एंड होल्डिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग गारंटी, सिक्योरिटी to the amount or the loan taken by its wholly owned subsidiary company. अगर होल्डिंग कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी ने किसी और से पैसा लिया है एंड उस मनी जो सब्सिडरी कंपनी ने लिया है उसकी गारंटी एंड सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है टू दैट थर्ड पर्सन, तो वो केस के अंदर भी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट 4 इज होल्डिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग गारंटी एंड सिक्योरिटी over the money taken by the wholly owned subsidiary company from the banks and financial institutions. मतलब wholly owned subsidiary ने जो पैसा लिया है वो कहाँ से लिया है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, एंड उसकी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज द 4th पॉइंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3rd एंड 4th पॉइंट? क्योंकि 3rd पॉइंट के अंदर भी होल्डिंग कंपनी क्या कर रही थी, गारंटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी ऑन बिहाफ ऑफ द मनी टेकन बाय इट्स होली ऑन सब्सिडरी, एंड 4th पॉइंट के अंदर भी होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, सिक्योरिटी और गारंटी प्रोवाइड कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द मनी टेकन बाय इट्स होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। सो द डिफरेंस इज 4th पॉइंट के अंदर जो अमाउंट है वो स्पेसिफिकली किससे लिया है, फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट इन 3rd पॉइंट ऐसा बोला है कि मनी रेज की है सिर्फ। अब होली ऑन सब्सिडरी ने पैसा कहाँ से लिया है, वाया कोई रिलेटिव या वाया कोई एनी अदर पर्सन, हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट उसमें कवर होगा, और अगर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो वो पॉइंट 4 ऑफ सबसेक्शन 3 के अंदर कवर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सबसेक्शन 1, 2 and 3 फ्रॉम माई साइड। If you have any doubt with respect to this particular section, you can just let me know in the comment section. For sure, I'll look into it. Now, when it comes to exceptions, अगर एक सेक्शन है तो उसके एक्सेप्शंस भी है कि ये पर्टिकुलर केसेस में ये सेक्शन नहीं अप्लाई होगा। मतलब देयर आर फ्यू कंपनीज जो डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्सेप्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे एंटायर सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होता, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सिर्फ सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होता। तो एक्सेप्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जहां पे पूरा सेक्शन अप्लाई नहीं होगा और जहां पे सिर्फ सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस ऑफ एंटायर सेक्शन 185। 185 कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। सो अब फर्स्ट पॉइंट इज 185 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। Yes, in case of private company, a company can give loan to its directors. This is not a blanket exception कि लाइक अगर प्राइवेट कंपनी है तो बस डायरेक्टर्स को लोन दे दो, हमें 185 चेक करने की नीड ही नहीं है, ऐसा नहीं है। There are 3 conditions. If a particular private company fulfills these 3 conditions, तो private company can provide loan to the directors. Condition 1 is that lender company is not having any shareholder as their body corporate. मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर नहीं है, एंड दैट पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी इज नॉट हैविंग डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। थर्ड वन इज कंपनी इज नॉट हैविंग बोरोइंग्स ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अगर ये तीनों कंडीशंस प्राइवेट कंपनी फुलफिल कर देती है तो वो केस के अंदर प्राइवेट कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज अ बार। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। नाउ सेकेंड एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 185 इज कि दिस एक्सेप्शन इज पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू द निधि कंपनी। इन केस ऑफ निधि कंपनी, ओके, आई विल लेट यू एक्सप्लेन दिस वाया एग्जाम्पल। Let's take an example. Mr. X. Mr. X is a director as well as shareholder in company A. एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक इंसान डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है, बट जो कंपनी लोन दे रही है टू दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन द कैपेसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर। मैं उसको शेयर होल्डर के पोजीशन पे लोन दे रही हूँ, सो यहाँ पे सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ निधि कंपनी। सो निधि कंपनी के केस में अगर आप लोन दे रहे हो इन द कैपेसिटी एज अ शेयर होल्डर, सो सेक्शन 185 विल नॉट बी एप्लीकेबल। नाउ कम्स टू थर्ड एक्सेप्शन. Third exception is applicable to the government company. In case of government company, if government company takes the approval of the government before lending any money to the director, then section 185 is not applicable because government ने approval दे दी है, so we are not obliged to comply with its particular section. So these are the 3 exceptions of entire section 185. Now the exception of particular subsection 1. Particular subsection 1 is not applicable to the specified IFSC public as well as private companies. Suppose the lender is the specified IFSC public or private company and the borrower is normal private company. Director of lender company, IFSC lender company, is either a director or member in the borrower company. But this is the relation. इसके अलावा वो पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, एंड लेंडर कंपनी ने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, सो सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब ये पर्टिकुलर 2 कंपनीज के अंदर सिर्फ इतना ही रिलेशन है कि ये जो डायरेक्टर है वो इस कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नो नथिंग, कुछ भी रिलेशन नहीं है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस company can give loan to its directors and special resolution is passed as said earlier कि this is the requirement. So this is the exception of subsection 1. This is all about section 185. I hope you got the clarity and crux of this particular section. If you want me to discuss any other section, just let me know in the comment section. And yes, don't forget to hit the like, share and subscribe button. Thank you for watching.